Hello everyone, I welcome you all to the new session on error spotting, also known as error detection. A very important topic that comprises of 5 marks, or that comes for 5 marks, and it comprises of all the grammar that you have learned. Okay, so without wasting any time, let us start with today's session, that is error spotting, as we are doing it for the most of the lectures, previous lectures, that I'll be reading the sentence once for you, and then you'll be getting some time to solve it. So let us start with today's session. And here is your first question. I'll read it for you. The law should specifically provide a clause to protect animals from poachers. I'll read it again. The law should specifically provide a clause to protect animals from poachers. To solve this question, you will be getting 1 minute and your time starts now. Okay, guys, so your time is up. Let us solve this question now. क्या कह रहा है ये question? The law should specifically provide. The law should specifically. ये part सही है, तो part 1 is correct. Provide a clause, no error. तो ये part 2 भी correct हो गया. To protect animals ये भी phrase सही है, तो part 3 भी correct हो गया. From poachers, ये part भी सही है. So when all the parts are correct, your answer automatically becomes option 5, that is no error. So there is no error in the first statement. बहुत ही आसान था. चलो next question देखते हैं. ये रहा इसका आंसर स्लाइड. So those वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर चाहते हो तो you can take screenshot. चलो let's move on to the next question. Question number 2. What kind of a man are you? I'll read it again. Part 1, what kind. Part 2, of a man. Part 3, are. Part 4, you. Okay, so I'll read it once again for you. What kind of a man are you? And for this question, you will be getting 1 minute and your time starts now. Okay, students, so your time is up. Let us look at the question now. What kind? What kind? Now this is an interrogative statement. देखो यहाँ पर question mark आया है. So this is a, देखो यहाँ पर question mark है, तो this is an interrogative statement. Interrogative statement है ये. ठीक है ना? WH से चालू होता है. WH what kind तो सही है. Part 1 is correct. Of a man.
ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ऑफ अ मैन आर, ठीक है, यू, ठीक है। तो पार्ट 3 इज करेक्ट, पार्ट 4 इज करेक्ट। नाउ यू विल बी वंडरिंग व्हाई अ मैन की जगह पर आर लगा हुआ है, क्योंकि अ मैन यहाँ पर सिंगुलैरिटी दर्शाता है, ठीक है ना। अ मैन यहाँ पर सिंगुलैरिटी दर्शाता है। तो अ मैन इज फुल ऑफ डिजायर्स, ठीक है ना। इफ आई राइट अ मैन इज फुल ऑफ डिजायर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अ आ गया है, आर्टिकल आया, तो यहाँ पर एक मैन है तो सिंगुलरिटी हो गई जहां, तो यहाँ पर इज आ गया, लेकिन यहाँ पर आर आ गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि पार्ट 3 मैंने करेक्ट क्यों कहा। ये क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, तो यहाँ पर अ मैन को यहाँ पर पूरे ह्यूमन स्पीसीज, ठीक है ना, पूरे ह्यूमन स्पीसी को वो दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, पूरे ह्यूमन स्पीसीज को वो दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसे मतलब when समथिंग इज डेडिकेटेड और डिनोटेड फॉर द एंटायर स्पीसी और एंटायर ग्रुप, तब जाके हमारा ये जो अ है, ये जो आर्टिकल है, वो हट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैन क्या है, मैन इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ह्यूमन स्पीसीज। व्हाट इज इट डूइंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ह्यूमन स्पीसीज। तो इस ऐसा जब होता है तब आपका जो आर्टिकल है अ या एन, तो वो हट जाता है। दैट्स व्हाई द एरर इज इन पार्ट 2। ऑफ अ मैन नहीं होगा, सॉरी, ऑफ अ मैन नहीं होगा, यहाँ पर अ हट जाएगा, सिर्फ ऑफ मैन रहेगा, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर बस बोला है कि इज सुपरफ्लुअस, बट इसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है। Those who have not understood can go and watch it again. चलो, without wasting any time, let's move on to the next question. And here it is on your screen. The lady approached me timidly and trembling slightly. She sat down beside me. I read it part by part now. The lady approached, part 1. Me timidly, part 2. And trembling slightly, part 3. She sat down beside me, part 4. I'll read the entire statement in one go. The lady approached me timidly and trembling slightly. She sat down beside me. So to solve this question, you'll be getting another 1 minute and your time starts now. Okay, guys, so your time is up. Let us look at the question. The lady approached. Part 1 is correct. The lady approached. Past tense में है, approached है, तो ये कौन सा tense है? ये बन गया आपका past tense. The lady approached me timidly. Okay, approached me timidly. कैसे आई? Timidly आई, तो ये adverb हो गया. And trembling slightly. And trembling slightly, तो ये भी सही है. तो part 2 is correct. Part 3 is also correct. She sat down besides me. अब एरर आपका पार्ट 4 में है, ठीक है ना। एरर आपका पार्ट 4 में है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। बिसाइड्स, बिसाइड्स जब आता है विद एन एस, तो उसका मतलब होता है इन एडिशन, ठीक है ना। इन एडिशन टू समथिंग, इन एडिशन टू समथिंग, मतलब I, for example, if I say that I have read
what we can say, I have read banking awareness notes besides doing English grammar also. ठीक है ना? If I say I have read banking awareness. If I say I have read banking awareness besides studying English grammar, besides studying English grammar. अगर मैंने ऐसा लिख दिया स्टेटमेंट, ठीक है ना, मान लो ये एक स्टेटमेंट है, I have read banking awareness besides studying English grammar. तब ये besides जो है, देखो यहाँ पर ये जो besides है, यहाँ besides में एक S भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? S भी लगा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? In addition to, क्या होगा इसका मीनिंग? इन एडिशन टू, मतलब क्या होता है कि आई हैव रेड बैंकिंग अवेयरनेस इन एडिशन टू स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो, मतलब मैंने इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा है और मैंने बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब दूसरा जो बिसाइड होता है, ठीक है ना, बिसाइड जब विदाउट एस आता है, ठीक है ना, यहां पर लिखता हूं बिसाइड। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट विराट वॉज सिटिंग beside Virat was sitting beside Rohit, ठीक है ना, विराट was sitting beside Rohit, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर beside है विदाउट एन एस, यहाँ पर कोई भी एस लगा है क्या? नहीं लगा। तो जब विदाउट एस होता है beside, तो उसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू। उसका मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू, मतलब बाजू में बैठना, ठीक है ना। बिसाइड, ठीक है ना, बिसाइड्स मतलब बिसाइड क्या होता है? अब देखो यहां पर लिखता हूं, बिसाइड जब होता है, वेट, देखो ये बिसाइड्स आपको समझ में आ गया, जब एस लगता है तो इन एडिशन टू समथिंग। अब ये देखो, ये लिखा मैंने बिसाइड, अरे ये लिखा मैंने बिसाइड। अब ये क्या है? विदाउट एस से बिसाइड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, बाजू में बैठना, नेक्स्ट टू, ठीक है ना। तो बिसाइड्स विद एन एस मींस इन एडिशन टू, बिसाइड विदाउट एस मींस नेक्स्ट टू, ठीक है, मींस नेक्स्ट टू। अब यहाँ सेंटेंस को एक बार देखते हैं। द लेडी अप्रोच्ड मी टिमिडली एंड ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, शी सैट डाउन बिसाइड्स। अब यहाँ पर बिसाइड्स आया है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? एस अगर आ गया तो कि इन एडिशन टू, ठीक है ना। शी सैट डाउन बिसाइड्स में नहीं होता ना, इसका मतलब क्या होता है कि वो मेरे बाजू में आके बैठ गई। तो यहाँ पर बिसाइड्स में क्या होना चाहिए था? ये एस को, इस एस को हटाना है, ठीक है ना। वी डू नॉट नीड दिस, okay, we do not need this s, just hold on. So we do not need this s over here. तो आपका एरर कहां पर है? आपका एरर पार्ट 4 में है, बिसाइड्स की जगह पर होना चाहिए था, है ना, बिसाइड्स के जगह पर होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ बिसाइड। क्या होना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ बिसाइड होना चाहिए था। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो ऑन एंड सी द एक्सप्लेनेशन। ये रहा एक्सप्लेनेशन स्लाइड, यही बताया गया, मतलब यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया था। Those who want to take screenshots, quickly take it. जिनको नहीं समझा है, please go and revisit the explanation again, आपको समझ में आएगा। Let's move to question number 4. Due to me being a newcomer, I was unable to get a good house. Part by part पढ़ता हूँ। Due to me being a part 1, newcomer part 2, I was unable part 3 to get a good house part 4. I did it again once in a one go. Due to me being a newcomer, I was unable to get a good house. To solve this question, I'll be giving you 1 minute and your time starts now.
Okay, guys, so your time is up. Let's solve the question now. Due to me being a newcomer, I was unable to get a good house. So part 2, 3, and 4 are correct. Sorry. Part 2, part 3 and part 4 are correct. Part 1 में गलती है. अब क्या गलती है देखो, ये बहुत ही मतलब यूसेज का गलती है. ये जो फ्रेज आता है ड्यू टू के बाद हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, दैट इज माय. ड्यू टू माय बीइंग अ न्यूकमर. अब ये रूल ही है, ड्यू टू के बाद ड्यू टू का फ्रेज होता है तो ड्यू टू माय बीइंग अ न्यूकमर. ठीक है ना, ड्यू टू माय बीइंग अ न्यूकमर ऐसा ही आएगा. ठीक है जी. अगर आपको क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज दी मतलब मी को रखना है, माई को रखना, मी को रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मी. बिकॉज अगर आएगा तो बिकॉज मी बीइंग अ न्यू कमर ऐसा रखना पड़ेगा. सो आइदर और आपको चेंज करना पड़ेगा. अगर आपको मी नहीं, मी को हटाना है, मतलब मी को अगर हटाना, मतलब ड्यू टू रखना है तो मी को हटाना पड़ेगा. ठीक है ना. ड्यू टू अगर आपको रखना है तो मी को हटा के माई करना पड़ेगा, या फिर मी को वैसे ही रखना है तो आपको ड्यू टू हटा के बिकॉज लगाना पड़ेगा. ठीक है ना. सो आपका एरर है पार्ट 1 में, दैट इज ड्यू टू मी बीइंग अ. यहां पर हम क्या करेंगे, मी को हटाएंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा. मी को हटा के माई कर देंगे. ड्यू टू माई बीइंग अ न्यूकमर आई वाज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस. अब ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है. तो जब भी ड्यू टू आता है तो हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो जस्ट गो एंड लुक एट ऑल द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर ग्रामर, कोर ग्रामर लेसन्स और फंडामेंटल लेसन्स ऑन ग्रामर. ठीक है. So let's move on to the next question, but before that, ये रहा उसका explanation. यहाँ पर इतना ही दिया है, लेकिन मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है. चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे. The circulation of the statesman is greater than that of any other newspaper. I'll read it part by part. The circulation of the part 1 statesman is part 2 greater than part 3 that of any other newspaper. I read it in one go. The circulation of the statesman is greater than that of any other newspaper. To solve this question, I allot you 1 minute and your time starts now. Okay, guys, so your time is up. Let us see the question. The circulation of the, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. स्टेट्समैन, स्टेट्समैन मतलब क्या, स्टेट्समैन नाम का कोई एक न्यूज़पेपर है, तो सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन मतलब ये न्यूज़पेपर, ये भी सही है. स्टेट्समैन इज ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन. अब ये देखो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है तो बिल्कुल सही इस्तेमाल है. नो नीड टू चेंज दिस और देयर इज नो एरर इन दैट. अब ग्रेटर देन के बाद दैट आता है तो ये भी सही है, दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर. तो कोई किसी और न्यूज़पेपर से ज्यादा सर्कुलेशन है किसका, स्टेट्समैन का. सो ऑल द पार्ट्स आर करेक्ट. सो आपका आंसर क्या बनेगा, नो एरर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा इसका आंसर स्लाइड. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. And here it is on your screen. I'll read it once for you. What he failed to understand were how she managed to escape. I read it part by part. What he failed to, part 1,
understand were part 2, how she part 3, managed to escape part 4. I'll read it in one go again. What he failed to understand were how she managed to escape. To solve this question, I give you entire 1 minute and your time starts now. Okay guys, your time is up. Let us see. Very easy question. I think आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये पढ़ते ही समझ में आ गया. What he failed. बहुत सही है, इसका यूजेज कोई दिक्कत नहीं. Part 1 is correct. What he failed to understand were. Understand were. अच्छा, अब देखना ये क्या आ गया यहाँ पर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गलती है, यहाँ पर एरर किया हुआ है. मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि ये जो टॉपिक्स है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से इस सेशन में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, subject verb agreement, then conditionals, subject verb agreement, conditionals, then we have what, preposition. तो ये इतने हॉट टॉपिक्स है ना कि एटलीस्ट आपने इतने तो करने चाहिए. आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी में बन जाए. ठीक है ना, ये मैंने बहुत बार बोला हुआ है, फिर से दोहरा रहा हूं. सो प्लीज ऑल द गाइज, ऑल द एस्पायरेंट्स who really want to crack this exam or who are very close to crack this exam but are not able to do it because they are scared of English, at least do this 5-6 topics. शायद आपका वो जो अगर 1-2 मार्क्स से रह रहा है तो वो निकल जाएगा. ठीक है, so take it seriously. Okay, now having said that, let's come back to the question. अभी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गलती है यहाँ पर. अब ये एक सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली सब्जेक्ट यहाँ पर व्हाट है, व्हाट ही. ठीक है ना, व्हाट ही. अब ही सिंगुलर है, ही फेल्स टू अंडरस्टैंड और ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, अब ये व्हाट के साथ सिंगुलैरिटी के साथ कौन सा वर्ब आएगा आगे. अगर सिंगुलर है तो आगे भी सिंगुलर ही आएगा. सो व्हाट ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड, व्हाट ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड वाज. अब एक चीज है तो एक ही ना आएगा, प्लूरल होगा तो वर्ब आएगा. अब यहां पर क्या आएगा आपका, एक ही वर्ब. सिंगुलैरिटी है तो सिंगुलैरिटी को जो दर्शाता है वही वर्ब आएगा. एंड सिंस दिस इज पास्ट टेंस, यहां देखना ये पास्ट टेंस दर्शा रहा है, इसलिए वाज. व्हाट ही फेल टू अंडरस्टैंड इज, और व्हाट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड इज. देखो ये प्रेजेंट टेंस में, ये क्या है, ये टेंस पास्ट में है, ये टेंस पास्ट में है. और सिंगुलैरिटी भी दर्शा रहा है कि एक ऐसी चीज है जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है. तो सिंगुलैरिटी है, तो सिंगुलैरिटी है और पास्ट है, इसलिए वॉज. अगर इसी को हम प्रेजेंट में लिख देंगे तो कैसा बनेगा, देखो ठीक से समझ लेना. प्रेजेंट में लिखेंगे तो कैसा बनेगा, व्हाट ही, यहां पर वर्ब है, अब फेल्स आएगा. एस क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम एस लगाते हैं. व्हाट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड, what he fails to understand, what he fails to understand is. अब यहां पर सिंस इट इज प्रेजेंट टेंस, हमने यहां पर कौन सा वर्ब यूज किया, प्रेजेंट टेंस वर्ब. लेकिन दोनों वर्ब देखिएगा, दोनों वर्ब कौन से, was हो या is हो. ठीक है ना, दोनों वर्ब जो है ये was या is, ये क्या करते हैं, these are associated with singularity. क्या करते हैं ये, these are associated with singularity. और यहाँ पर सिंगुलैरिटी है स्टेटमेंट में, इसलिए अंडरस्टैंड वर नहीं होगा, अंडरस्टैंड was. What he failed to understand was how she managed to escape. तो आपका पार्ट 2 में गलती है वर की जगह पर. ठीक है ना,
वर की जगह पर आपको क्या चाहिए, वर की जगह पर आपको क्या चाहिए था, वर की जगह पर आपको चाहिए था was. That would have been your correct answer. I hope you must have understood it. Let's move on to the next question. ये रहा आंसर स्लाइड आपके लिए, सो जस्ट गो थ्रू इट, जिसको भी चाहिए वो स्क्रीनशॉट निकालो. Let's move on to the next question, that is question number 7. I'll read it for you. Neither of the two students nominated for the National Spelling Bee were able to win the I'm so sorry, were able to win the competition. I'll read it part by part. Part 1 क्या कह रहा है? Neither of the two. Part 2 क्या कह रहा है? Students nominated for. Part 3, the National Spelling Bee were. Part 4, able to win the competition. I'll read the entire statement in one go again. Neither of the two students nominated for the National Spelling Bee were able to win the competition. To solve this question, I give you 1 minute and your time starts now. Okay guys, your time is up. बहुत ही आसान क्वेश्चन था. देखते हैं. नाइदर ऑफ द टू, देखो नाइदर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना, ध्यान देना इस पे, नाइदर का इस्तेमाल हुआ. नाइदर ऑफ द टू, पार्ट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टूडेंट्स प्लूरल है, 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना. नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड फॉर, पार्ट 2 इज आल्सो एब्सोल्युटली फाइन, नो एरर इन दिस आल्सो. नॉमिनेटेड फॉर व्हाट? द नेशनल स्पेलिंग बी वर, ठीक है ना. एबल टू विन द कॉम्पिटिशन, एबल टू विन द कॉम्पिटिशन, ये भी सही है, सो पार्ट 4 इज करेक्ट. दिक्कत आपके पार्ट 3 में है, ठीक है ना. बहुत ही आसान है, ध्यान से बस इसको याद रखना, ठीक है ना. नाइदर जो होता है ना, नाइदर, नाइदर के साथ हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब जाता है, आपका सिंगुलर वर्ब जाता है. नाइदर हो मतलब, या आइदर हो, नाइदर, आइदर, इनके साथ हमेशा आपके सिंगुलर वर्ब ही जाता है. अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं. नाइदर ऑफ द टू, अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि नाइदर, नाइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द टू, इसका मतलब क्या होता है? नाइदर ऑफ द टू का मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक, है ना. नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट मतलब दोनों में से एक भी जीत नहीं पाया, ठीक है ना. अगर इसको हम हिंदी में लिख दे तो क्या लिखेंगे? दोनों में से एक, दोनों में से एक, ठीक है ना. अब ये क्या होता है? दोनों में से एक, मतलब ये क्या दर्शा रहा है? अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग और डिनोटिंग सिंगुलैरिटी, है कि नहीं? व्हाट इज इट डूइंग? इट इज डिनोटिंग सिंगुलैरिटी. दोनों में से एक मतलब किसी एक की ही बात हो रही है कि साला, मतलब सॉरी, दोनों में से एक भी नॉमिनेट जो हुआ है, दोनों, वो दो में से, तो वो एक भी जीत नहीं पा रहा, ठीक है, या जीत नहीं पाए. तो नाइदर ऑफ द टू भी क्या दर्शाएगा? नाइदर ऑफ द टू भी क्या दर्शाएगा? सिंगुलैरिटी. और मैंने पिछले में क्वेश्चन में ही बोला था कि सिंगुलैरिटी जब आएगी, हाँ जी, सिंगुलैरिटी जब आएगी तो हम सिंगुलर के ही वर्ब्स यूज करेंगे, है कि नहीं? मतलब क्या? इज या फिर was. यहां पर क्या यूज हुआ है? यहां पर वर यूज हुआ है. सिंस द स्टेटमेंट इज इन पास्ट टेंस, हमें वर की जगह was करना चाहिए था. अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो हम इसका इस्तेमाल करते. आई बात समझ में? ये याद रखना, नाइदर आइदर के साथ क्या होता है? नाइदर आइदर के साथ हमारा हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब ही आता है. आपको बस टेंस जानना है और टेंस जान के उस हिसाब से आपको सही वर्ब का इस्तेमाल करना है. अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो इज,
पास्ट टेंस होगा तो was। तो कहां पर होगी गलती? गलती होगी आपके पार्ट 3 में। वर की जगह होना चाहिए था, वर की जगह होना चाहिए था आपका was। I hope you must have understood it. Let's move on to the next question। ये रहा आपका explanation, जो मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। Those all who didn't understand, take a screenshot फटाफट, या फिर नहीं समझा है तो फिर से एक बार वीडियो को सुनना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। A number of houses was demolished so that the supermarket could be built। पार्ट बाय पार्ट पढ़ता हूं। A number of houses was, part 1, demolished so, part 2, that the supermarket, part 3, could be built, part 4। I'll read the entire statement in one go। A number of houses was demolished so that the supermarket could be built। Okay, and to solve this question, I'll be allotting entire 1 minute to you, and your time starts now। Okay, guys, your time is up. Let us look at the question। A number of houses was demolished so that the supermarket could be built। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे घरों को डिमोलिश कर दिया ताकि वहां पर सुपरमार्केट बन जाए। ठीक है ना? क्या है? बहुत सारे घरों को, मतलब घरों को, हाउसेस। ठीक है ना? A number of houses was demolished। अब हाउसेस के साथ क्या जाएगा? ये प्लूरल है तो आर जाएगा या फिर वर जाएगा, है ना? आर जाएगा या फिर वर जाएगा, क्योंकि क्या है? हाउसेस सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो यहां पर देखना फिर से क्या आ गया, फिर से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन आ गया। आप एग्जाम्स में भी देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अ नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है ना? अ नंबर, फिर भी देखो आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि अ नंबर है तो ये सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, मतलब कोई उसमें ये नहीं है। अ नंबर ठीक है, लेकिन ये क्या? अ नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर नहीं पता, लेकिन अ नंबर ऑफ हाउसेस, ये इसका क्या बोलता है कि ये 2 से ज्यादा ही है। ठीक है ना? 2 से ज्यादा एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला है, बट दिस इज 2+। 2+ है तो क्या हो गया? ये हो गया आपका प्लूरल, और वो दर्शाता है हाउसेस विद एस ओवर हियर। ठीक है ना? तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर आर या फिर वर आएगा। अब टेंस कौन सा है इस स्टेटमेंट का? देखो यहाँ पर डिमोलिश्ड यूज किया गया है, कुड बी बिल्ट यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये टेंस कौन सा है इसका? इस सेंटेंस का टेंस है पास्ट में, तो यहाँ पर पास्ट में होगा तो क्या आएगा? वर आएगा। तो वॉस की जगह पर क्या आएगा? वॉस की जगह पर आएगा आपका वर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। ठीक है ना? सो अ नंबर ऑफ हाउसेस वॉज नहीं आएगा, अ नंबर ऑफ हाउसेस वर, इसलिए एरर है पार्ट 1 में। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड। यहाँ पर बताया मैंने, वैसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दिया ही है मैंने अभी। चलो जी, स्क्रीनशॉट निकालो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I read it for you। As surprising as it may seem, Iceland is one of the places that is most likely to benefit from global warming in the long term। I read it part by part। Part 1 क्या कह रहा है? As surprising as it may seem। Part 2, Iceland is one of the places that is, part 3, most likely to benefit from global, and part 4, warming in the long term। I'll read the entire statement once for you in one go। As surprising as it may seem, Iceland is one of the places that is most likely to benefit from global warming in the long term। To solve this question, I allot you 1 minute and your time starts now।
Okay, guys, so your time is up. Let's solve this question. पार्ट ए क्या कह रहा है? As surprising as it may seem, as surprising as it may seem, Iceland. अब ये पार्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है. Iceland is one of the places that is, ठीक है ना, तो गलती यहां पर है. Most likely to benefit from global, ये सही है. Warming in the long term, ये भी सही है. पार्ट 2 में गलती है. अब यहां पर क्या गलती है देखना. ये क्या है? वन ऑफ का एरर है. वन ऑफ द, जब भी वन ऑफ द आता है तो उसके बाद आपका क्या था? वन ऑफ द का मतलब क्या था? उनमें से एक. लेकिन याद रखना कि उसके बाद प्लेसेस आया है, ठीक है ना. वन ऑफ द प्लेसेस मतलब उन प्लेसेस के, मतलब वन ऑफ द प्लेसेस मतलब बहुत सारे प्लेसेस में से एक प्लेस, ठीक है ना. तो आपको लगेगा कि यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि बीच में क्या आया है? दैट. तो याद रखना जब भी वन ऑफ द आएगा, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ मतलब आपको समझ में आएगा. वन ऑफ द, जब भी आपका वन ऑफ द आएगा, वन ऑफ द प्लेसेस, उसके बाद अगर दैट आता है तो आगे आने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है ना. सो ऐसा लिखते हैं वन ऑफ द प्लेसेस प्लस दैट प्लस आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा. वो क्या होगा? वो प्लूरल वर्ब होगा. यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज किया है क्या? नहीं किया. यहाँ पर क्या किया है? सिंगुलर वर्ब. तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? आर, ठीक है ना. तो ये रूल होता है. वन ऑफ द प्लेसेस प्लस दैट होगा तो आगे आने वाला वर्ब प्लूरल होगा. सिर्फ ऐसा होगा वन ऑफ द प्लेसेस और फिर आपका जो आने वाला वर्ब है वो आपका सिंगुलर होगा. फिर वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना. तो ये दो इंपॉर्टेंट वो रूल्स है, इसको ठीक से याद करना. प्रैक्टिस करना, याद मत करना, रटो मत इन चीजों को. इन चीजों का प्रैक्टिस करो. अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? उसके बहुत सारे तरीके हैं, एक दो मैं आपको बता देता हूँ. कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इन चीजों का इस्तेमाल होता है. द ओनली थिंग इज दैट वी डू नॉट पे अटेंशन क्लोजली टू इट. So try to read, when you are reading the newspaper, try to analyze or try to recall all the rules that you have learned. एक तो ये. दूसरा ये है कि आप बोल सकते हो, ठीक है ना. इवन इफ यू आर टॉकिंग इन ब्रोकन इंग्लिश डजंट मैटर, बट बोलना सीखो. एंड थर्ड थिंग इज दैट यू कैन प्रैक्टिस बाय राइटिंग द सेंटेंसेस. जैसे मैंने अभी ये रूल लिखा, तो गो एंड सी सेंटेंसेस और गो एंड आइडेंटिफाई सेंटेंस और खुद के सेंटेंस बना. इफ यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट एज वेल. कोई दिक्कत नहीं है गूगल का मदद लेने में, ठीक है ना. देयर इज नो हार्म और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गूगल, ठीक है. रूल याद रखना, वन ऑफ द प्लेसेस के बाद दैट आएगा तो प्लूरल वर्ब. वन ऑफ द प्लेसेस के बाद दैट वैट कुछ नहीं है तो आएगा आपका सिंगुलर वर्ब. इस सेंटेंस में हमारा क्या है? देखो वन ऑफ द प्लेसेस है, प्लेसेस के बाद क्या आया है? दैट आया है. तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर इस नहीं आके यहाँ पर आएगा आपका आर, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है तो आर, ठीक है. तो ये पार्ट 2 में आपका एरर है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 10. सॉरी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन. स्क्रीनशॉट निकालना, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पर चीज बताई गई है. सो फटाफट स्क्रीनशॉट निकालना. चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. Jacob, who owns 16 houses, are on his way to becoming a billionaire. I'll read it part by part. क्या कह रहा है पार्ट 1? Jacob who owns. पार्ट 2 क्या कह रहा है? 16 houses are. पार्ट 3 क्या कह रहा है? On his way to. पार्ट 4 क्या कह रहा है? Becoming a billionaire. I read the entire statement in one go. Jacob, who owns 16 houses, are on his way to becoming a billionaire. To solve this example or to solve this question, I give you 1 minute and your time starts now.
Okay, guys, your time is up. Let us solve this question now. Jacob, who owns, ठीक है ना, part 1 is correct. 16 houses are, अब यहां पर गलती है, तो यहां पर गलती है. On his way to, part 3 is correct. Becoming a billionaire, part 4 is also correct. अब देखो, this is a very classic example of errors. यहां पर बहुत सारे लोगों को क्या लगा होगा कि 16 houses, अब क्या लिखा है यहां पर, यहां पर मैं लिखता हूं, Jacob who owns, ऐसे ही लिखा है ना, Jacob who owns 16 houses, और फिर क्या लिखा है, 16 houses are, ठीक है ना. अब दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज वेरी क्लासिक एग्जांपल और दिस इज वेरी क्लासिक रूल, जिसको कहा जाता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या, जो नजदीकी है. प्रॉक्सिमिटी मतलब जो नजदीक है, तो इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है. अब अगेन, अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहां से आता है, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी आता है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से. I repeat again, this topic is very important. Subject verb agreement बहुत ही important topic है. लेकिन subject verb agreement के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले verb सीखना पड़ेगा, आपको subject सीखना पड़ेगा, आपको tense सीखना पड़ेगा, है ना. वही सारे topics जो मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, you need to be very good in those, तब जाके subject verb agreement आएगा, and then आपका काम आसान होगा to clear any exam related to banking. So, chalo, coming back to this. अब Jacob who owns 16 houses. अब error of proximity क्या कहता है? Most of the candidates और most of the people क्या कहते हैं कि यार 16 houses है ना, 16 houses है. अब ये क्या कहता है कि 16 houses है. अब 16 houses मतलब क्या हो गया, ये तो plural हो गया. 16 houses मतलब singular हो गया कि plural हो गया, ये तो plural हो गया, है ना. 16 houses plural है, तो प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल के साथ आपका आर या फिर वर आएगा, है ना. लेकिन यहां पर वर्ब जो है, वर्ब ऑलवेज, देखो याद रखना वर्ब, ठीक है ना. कहां लिख दूं मैं, चलो यही लिख देता हूं, ठीक है. याद रखना कि द वर्ब और अ verb always agree. A verb always agrees with its subject. क्या समझे कि ये जो वर्ब है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के साथ जाता है, बाकी किसी के साथ नहीं जाता है, ठीक है ना. तो वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब यहाँ पर आर है, आर इज द वर्ब. तो क्या लगता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी में, क्या लगता है कि अरे यहाँ पर तो नजदीक में क्या है, 16 हाउसेज नजदीक में है कि नहीं. सबको क्या लगता है कि 16 हाउसेज नजदीक में है. 16 हाउसेज क्या है, प्लूरल है, आर आया है, आर आया है मतलब करेक्ट होगा. तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि अरे इसका आंसर नो एरर है कि नहीं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. यहाँ पर एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, क्लासिक एरर इन इंग्लिश ग्रामर. यहाँ पर आपको 16 हाउसेस सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, चलो मैं आपको देखो इसको पहले इरेज करता हूँ. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे जेकब भाई साहब है. जेकब भाई साहब हमारे सब्जेक्ट है. अब जेकब क्या है, हाँ जेकब क्या है, जेकब एक इंसान का नाम है, एक ही इंसान का नाम है, तो ये सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, यस इट विल बी सिंगुलर. तो सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब जाता है, सिंगुलर के साथ आपका इज, अगर पास्ट होगा तो वॉज, ठीक है ना. अब जेकब है, अब देखना, अब यहाँ पर ये करता हूं, एक टेबल आपको फिर से बना के देता हूं, अगर दिक्कत किसी को होती है तो. देखो ये बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टेबल आप लोग भी बनाना. 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, देन वी हैव सेकंड पर्सन, है कि नहीं, देन वी हैव थर्ड पर्सन. बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन यहीं पर दिक्कतें होती है. बेसिक है लेकिन जब बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं तब जाके क्वेश्चन बनते नहीं है. तो फर्स्ट पर्सन, देन वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन.
then we have singular, and we have singular है, and then we have plural. ठीक है, क्या है, सिंगुलर है और प्लूरल है. ठीक है, अब देखना. ठीक है, चलो. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई. क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है. फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? तो आई का बन जाता है वी. आई का बन जाता है वी. सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या है? तो वो होता है यू. है कि नहीं? सेकेंड पर्सन क्या होता है? सिंगुलर यू. प्लूरल क्या होता है? प्लूरल भी यू होता है. ठीक है ना. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? तो वो होता है ही, शी, इट. ठीक है, क्या होता है? ही, शी, इट. और प्लूरल क्या होता है? दे. प्लूरल क्या होता है? दे. ठीक है ना. अब वर्ब में आपने पढ़ा होगा बी के फॉर्म, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? जो बी से निकल के आते हैं. ठीक है ना. कहां से निकल के आते हैं? जो बी, ये जो फॉर्म है ना, इससे निकल के आते हैं. वो कितने वर्ब्स है? वो 8 वर्ब्स है. कौन से? एम, इज, आर. ठीक है ना. देन वी हैव was, were. ठीक है ना. देन वी हैव being, and we have been. तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7. अभी तो मैंने बोला था 8, लेकिन आप बोल रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो 7 ही है. फिर से गिनते. 1 2 3 4 5 6 7 और खुद ये बी. तो ये 8 फॉर्म्स होते हैं बी के, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, या इंग्लिश अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ठीक है ना. अब ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ चला जाता है. ठीक है ना. फटाफट से बताता हूँ. ये डिटेल नहीं है इस पे, लेकिन फिर से बताता हूँ क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं. आई के साथ प्रेजेंट टेंस में जाएगा एम, पास्ट टेंस में जाएगा वॉज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम वॉचिंग अ मूवी, है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम वॉचिंग अ मूवी. मैं मूवी देख रहा हूँ. आई एम वॉचिंग अ मूवी. अगर मैं मूवी देख रहा था तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज वॉचिंग अ मूवी. वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ प्रेजेंट टेंस में आएगा वी आर वॉचिंग अ मूवी. तो देखो, एम का इस्तेमाल हो गया, वॉज का इस्तेमाल हो गया, अब आर का हो गया, वर का हो गया. ठीक है ना. वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे हैं. पास्ट में होगा तो मतलब जैसे मान लो कि हम मूवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग अ मूवी. यू के साथ क्या है? यू के साथ देखो, सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू ही होता है. तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर में भी वही वर्ब आएंगे और प्लूरल में भी वही आएंगे. ठीक है ना. जैसे मान लो सिंगुलर, जैसे मैं किसी एक को बोल रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ कि वो मूवी देख रहा है, तो यू आर वॉचिंग अ मूवी. पास्ट में कहूंगा तो यू वर वॉचिंग अ मूवी. सेम थिंग यहाँ पर, यू आर वॉचिंग अ मूवी, यू वर वॉचिंग अ मूवी. अब यहाँ पर क्या मैं 4-5 लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग मूवी देख रहे हो, तो यू आर वॉचिंग अ मूवी. पास्ट में अगर बोलूंगा कि वही 4-5 लोग कल मूवी देख रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा? यू वर वॉचिंग अ मूवी. अब ही, शी, इट के साथ क्या आता है? देखना, ही, शी, इट के साथ आता है इज, या फिर मतलब ही के साथ भी इज, शी के साथ भी इज, इट के साथ भी इज. प्रेजेंट टेंस हो तो. पास्ट टेंस होगा तो was, was. दे के साथ क्या आता है? दे मतलब he is watching a movie, she is watching a movie, it is watching a movie. पास्ट होगा तो he was watching a movie, she was watching a movie, it was watching a movie. दे के साथ क्या आएगा? they are watching a movie and they were watching a movie. पास्ट टेंस होगा तो were, प्रेजेंट टेंस होगा तो are. तो देखना, 1 2 3 4 5 वर्ब्स यहाँ पर यूज हुए. बी, बीइंग और बीन, ये जो 3 है, कौन से? बी, बीइंग और बीन. ये वापस से जाके मेरे लेक्चर्स देखना वर्ब पे कि इसको कहां पर यूज करते हैं. लेकिन ये जो है बेसिक वाले कि आई एम, वी आर, यू वर, ही, शी, इट, इज, वॉज, दे आर, वर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है ना। इसके आपको कहीं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब जेकब जो है, जेकब क्या है, देखना यहाँ पर जेकब क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या जाता है, अब मुझे बताना जेकब को अगर हमने कोई प्रोनाउन लगाना है तो कौन सा आएगा प्रोनाउन। जेकब हु ओन्स 16 हाउसेस, ठीक है ना, ये आर वर्ड छोड़ दो अभी। जेकब हु ओन्स 16 हाउसेस, ठीक है ना। कहां पर पैदा हुआ था, हाइपोथेटिकली लेते हैं, चलो ना काल्पनिक ले करते हैं। जेकब हु ओन्स 16 हाउसेस, वो मान लो कि वो मुंबई में पैदा हुआ था, तो हम क्या लिखेंगे। अब हम वापस से नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, हम नाउन को रिपीट नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जेकब का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा ना। तो ही वॉज बॉर्न इन मुंबई। अब ये यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, मैं ऐसे ही आपको काल्पनिक मतलब ये बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, फिक्टिशियस। ही वॉज बॉर्न इन मुंबई, ऐसा हो जाएगा। तो देखना जेकब को कौन सा प्रोनाउन लगा, जेकब को लगा प्रोनाउन ही। अब यहाँ टेबल पे मैंने क्या बोला था, ही के साथ कौन सा प्रोनाउन जाता है, इज या फिर वॉज, है कि नहीं, इज या फिर वॉज जाएगा। अब जाके स्टेटमेंट देखते हैं, अब जाके स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। जेकब हु ओन 16 हाउसेस, ठीक है ना, जेकब को क्या लगेगा, जेकब को कौन सा प्रोनाउन लगेगा, ही लगेगा। ही के साथ कौन सा वर्ब आता है। अब सब्जेक्ट क्या है, देखो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भाई हमारा जेकब भैया, जेकब भाई साहब हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जेकब भैया हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जेकब के क्या लगेगा, ही लगेगा। ही के साथ क्या आता है, आइदर आपका इज आता है या फिर आपका वॉज आता है। यहाँ पर क्या आया है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आर का इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है। आर की जगह पर क्या होना चाहिए था, आर की जगह पर होना चाहिए था इज। जेकब हु ओन्स 16 हाउसेस इज ऑन हिज वे टू बिकमिंग अ बिलियनेयर। क्या होगा वो, जेकब हु ओन्स 16 हाउसेस is on his way to becoming a billionaire. I hope you must have understood this explanation. यहाँ पर हमारा this is called as, this is a very classic error in English grammar which is called as error of proximity. क्या कहा जाता है इसको, error of proximity. हमें लगता है कि जो नजदीक है उसी के साथ वर्ब जुड़ेगा, जहां पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 16 हाउसेस के साथ आपको लगा आर सही होगा, लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है जेकब भैया, जेकब भाई साहब हमारे सब्जेक्ट है। तो जेकब के साथ क्या आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो पार्ट 2 में एरर है, आर की जगह पर होना चाहिए था इज। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। let us look at this. ये तो टेबल बनाए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल, आप खुद से एक टेबल बनाना है, ठीक है ना, खुद से एक टेबल बनाना है। ऐसे बहुत आसान टेबल है, और टेबल बनाने के बाद आप 2-2 सेंटेंसेस हर एक पर्सन के लिख देना, पास्ट में भी और प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों टेंसेस में लिख देना। दिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग और बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स इन ग्रामर, ठीक है। लेट अस लुक एट द आंसर स्लाइड। ये रहा आपका आंसर स्लाइड, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था वही चीज यहाँ पर है। स्क्रीनशॉट निकालना और वापस से इसको पढ़ना, रिवाइज करना, ठीक है। ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे गाइस। आई thank you all of you for joining in this session of error detection. I hope that you all will join in our next session on error detection, but till then I'll sign off from here. Thank you so much for joining. Bye bye.